Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, friends, today our discussing topic will be modern gallantry, means respect toward the female gender. Okay, this essay has been written by Charles Lamb, and today we will discuss about the author or literary device of the essay and about the essay. So the next video we will discuss about the text glossary and model explanation. So students, before entering to this video lecture, I have a small request. If newly you are visiting my channel, either if newly you are watching my video, so please subscribe this channel and hit the bell icon also. So okay, then let us start. So especially this lesson has been designed for Vardhaman Mahabir Open University, Rajasthan, but if any other university or college adopted this lesson and the student of that particular college or university can be watch this and can be get benefit also. So then just I will read it and I will translate in Hindi. Okay, so okay, that's good. So let us start. As I mentioned, first of all I will tell you about the literary device. Okay, the literary device. So in future we will make separate video for literary device, but according to this essay and what is the literary device of this essay, today we will discuss that only. Okay, so in separate video we will discuss romantic age also. I will explain all the ages, but my process is very slow for this university and college video because I have a lot of work for high school. Because of that reason I am not able to make everyday videos. Anyway, twice a week, either once a week, so I am able to make. Anyway, so let us begin. Literary device, the essay. Essays like drama, novels, short stories, and other type of literature act as an important vehicle to convey our thoughts. Essay जैसे कि ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर टाइप ऑफ लिटरेचर, ये क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट साधन, एक महत्वपूर्ण साधन है जो हमारा जो थॉट है, ठीक है, उसको कन्वे करता है, मतलब उसको बताता है. Essayists have written essays in various topic and in different style. जो एसेइस्ट है उन्होंने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर अपने ऐसे को लिखे और बहुत सारे स्टाइल को अपनाते हुए अपना ऐसे को लिखे. द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में बी डिफरेंट. कुछ तो डिफ़िकल्टी हो सकता है, कुछ तो डिफरेंट हो सकता है. देयर एम्स में भी डिफरेंट, उनके जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो भी डिफरेंट हो सकता है. These two unit 3 and 4 deal with didactic type of essay meant for instruction as well as pleasure. लेकिन ये जो 3 और 4 यूनिट जो है हमको
क्या करता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ हमें इसमें आनंददायक की बातें भी पहुंचाता है। हे आर नॉट टू लॉन्ग टू टायर योर ब्रेन एंड लीड यू टू बेडरूम, है ना। तो ये इतना लंबा नहीं है कि वो आपको टायर्ड कर दे। वाइल स्टडिंग दिस एसे यू शुड नो हाउ एन एसे इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ लिटरेरी जनर्स। तो दूसरे लिटरेरी जनर से ऐसे कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ को आपको अलग करना है, ये चीज़ को आपको समझना है जब आप ऐसे को पढ़ रहे होते हैं। When you are looked to write an essay in your examination, do you express your views in such language as used in these essays? इस essay में जब कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन को आप लिख रहे होते हैं तब आपको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज से और अपना व्यू को यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। क्या आप ऐसा करते हैं? परहैप्स नॉट, शायद ऐसा नहीं है। Here lies the charm of personality of the essayist. Personality of the essayist is reflected in the essay, though the essay may not be an autobiographical one. और ये ऐसे एक ऑटोबायोग्राफिकल के आधार पर शायद नहीं है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट इज हाउ द एसिस्ट हैव बिगन देयर एसेस। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि एसिस्ट कैसे अपने ऐसे को शुरू करते हैं। डू फील इट इज मैटर ऑफ चांस दैट बोथ दिस essay chosen Unit 3 and Unit 4 begin with the definition of the key word of the title. If you know what is the title mean, it becomes easy to write or to understand the essay. तो सबसे पहले टाइटल को पहचानें और टाइटल को जैसे आप पहचान लेंगे तो आप बड़ी आसान तरीके से ऐसे को लिख सकेंगे। अबाउट द ऑथर, हम थोड़ा ऑथर के बारे में देखें। यह ऑथर कौन है? चार्ल्स लैम्ब। 1775 to 1834 मीन्स फ्रॉम 1775 to 1834 a famous essayist who wrote under his pseudonym of Elia। एलिया के जो कृतक नाम के आधार पर ये ऐसे को वो लिखते हैं। ही pseudonym जो कृतक नाम एलिया was borrowed from the surname of a fellow clerk in a South Sea house where Lamb worked for quite a long time। ये एक सरनेम है एलिया जो लिया गया है और साउथ सी हाउस से, जहाँ पे एक कुछ लंबे समय तक और लैम्प वहाँ पे काम कर रहे थे। ही वॉज देन ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया हाउस, फिर उसके बाद उसको ईस्ट इंडिया हाउस में ट्रांसफ़र होना पड़ा। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स इन हिज एसे। तो उनके एसे में ऑटोबायोग्राफिकल का डिटेल्स पाए जाते हैं। फॉर ए शॉर्ट टाइम इन 1795 to 96 ही वॉज मेंटली ड्रेंच्ड, मतलब 95 से लेकर के 96 तक जो एक साल है मेंटली वो बहुत ही ड्रेंच थे, मतलब मेंटली वो सही नहीं थे। एंड द थ्रेट ऑफ मैडनेस बिकम ए शैडो, जो मैडनेस का जो थ्रेट है, सतर्कता, उनके जीवन में एक परछाया बन करके चली ऑन हिज लाइफ। हिज सिस्टर मैरी अंडर
The severe attack of insanity killed her own mother in 1796. उसके माँ भी ऐसे मानसिकता का संतुलनता को खो बैठती है, पागलपन में आ जाती है और अपनी खुद की माँ को ही किलिंग कर देती है, जो 1796 की बात है। His love affair with Anne Simmons of Hertfordshire was unsuccessful and unfortunate. इनके जो प्रेम कहानी है वो भी अधूरा और दुर्भाग्य रह गया। Lamb's literary criticism is scattered and small in volume. लैम्ब्स का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये स्कैटर्ड मतलब फैल गया और छोटे छोटे वॉल्यूम में है। थ्रो A.C. Bradley regarded him as the greatest critic of his century। जैसे कि A.C. Bradley को उन समय के एक ग्रेटेस्ट क्रिटिक के रूप में उस सेंचुरी में जाना जाता था। लैम्ब हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ब्रीफ एंड एक्यूरेट कैरेक्टराइजेशन, और लैम्ब मास्टर हो गए एक मतलब एक्यूरेट कैरेक्टर को स्थापित करने में। हिज कमेंट्स आर जनरलाइज्ड बट पर्सपेक्टिव, उनका जो कमेंट्स है वो जनरलाइज्ड है लेकिन पर्सपेक्टिव भी है। दिस हैज़ मेड हिज वर्ड ओरिजिनल एंड इल्यूमिनेटिंग, और ये जो शब्द है वो ओरिजिनल एंड इल्यूमिनेटिंग यानी प्रकाशन देने वाला। ही वॉज ए वेल नोन लेटर राइटर ऑफ ग्रेट चार्म एंड क्वालिटी। वो एक बहुत अच्छे और प्रभावशाली लेटर राइटर भी है। लैम्ब ट्राइड टू राइट पोइट्री एंड ड्रामा ऑल्सो, बट ही इज चीपली known for his essay Lamb's Essay of Elia appeared in 1823, his most remarkable work which made him the prince of the essayist। तो हालांकि वो ड्रामा और पोइट्री ये सब लिखते थे, लेकिन ये एक ऐसे लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो गए जिन्होंने एसे ऑफ एलिया जो उनका 1823 में अपीयर हुआ था, फिर उसके साथ साथ ये एक मोस्ट रिमार्केबल द प्रिंस ऑफ एसिस्ट वो भी रहा। इन दिस बुक ही हैज प्रेजेंटेड द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इन हिज कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल, लाविंग विट एंड ह्यूमर। इस ऐसे में खास करके वो क्रिटिसिज्म करते हैं जो ऑफ लाइफ इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी कैरेक्टर के आधार पर उसको क्रिटिसिज्म करते हैं, और इसमें बहुत विट एंड ह्यूमर पाए जाते हैं, यानी एक प्रभावशाली तर्क भी हम यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। इन दिस एसेस लैम्ब प्रेजेंट हिमसेल्फ एज एलिया। इस ऐसे में लैम्ब अपने आप को एलिया के रूप में प्रेजेंट करते हैं, एलिया के रूप में, और वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। एंड इज सिस्टर मैरी एज कॉजिन ब्रिजेट, और उसका जो सिस्टर है उसको कजिन ब्रिगेट के रूप में और प्रेजेंट किया जाता है। सम ऑफ हिज फेमस एसेस आर, उसके कुछ फेमस ऐसे इस प्रकार है: ड्रीम चिल्ड्रन, ए रिवरेज, द पैराडाइज, द praise of chimney sweeper, imperfect sympathies, all full day, the old familiar face, a bachelor, complaint against the behavior of married people, the old and the new school master, poor relations। ये जो कुछ लेख है और कुछ किताबें हैं ये चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे हुए हैं और आज भी ये उपलब्ध है।
ये 9 है. Okay. Witches and other night fear. As he already been mentioned, lamp got the pseudonym एलिया, मतलब एक दूसरा नाम उन्होंने ले रखा है, लैम्प एलिया है, फ्रॉम द नेम ऑफ द इटालियन हु वर्कड एज हिज कल्चर एट द साउथ सी हाउस. तो जिसके साथ वो साउथ सी हाउस में और एक लंबे समय तक काम कर चुके थे, एक साथी बन करके. मोस्ट ऑफ लैम्प्स एसेस आर डीपली पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल. उनके जो ऐसे है और बहुत गहराई रूप से व्यक्तिगत भी है और साथ ही साथ ऑटोबायोग्राफिकल भी है. दिस एसेस आर ए गुड व्हीकल फॉर सेल्फ रिवलेशन के लिए और स्वयं के प्रकाशन के लिए एक ये बहुत ही सुंदर साधन है जो ऐसे होता है. द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, जब पहला जो पर्सन है सिंगुलर प्रोनाउन है. इन द ऐसे स्टैंड्स फॉर राइटर, जो राइटर के लिए स्टैंड होता है. एंड इट्स नॉट ए पर्सोना, और ये पर्सोना नहीं है. लैम्प्स एसेस आर फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर. लैम्प्स का जो ऐसे है बहुत से विट भी रहता है और ह्यूमर भी रहता है, मतलब प्रभावशाली जिसको हम कह सकते हैं. ही मेक्स फन ऑफ हिमसेल्फ एज वेल ऑफ अदर्स. वो अपने आप का भी मजाक उड़ाता है और साथ ही साथ दूसरों का भी है. हिज विट एंड ह्यूमर आर यूजुअली नॉट फुल ऑफ हेट्रेड और पर्सनल रिवेंज. इसमें कोई व्यक्तिगत घृणा या तो फिर कोई व्यक्तिगत रूप से और रिवेंज यानी व्यक्तिगत रूप से और प्रतिशोध लेना, इन सब के बारे में व्याख्या नहीं करता. पैथोस इज क्लोजली रिलेटेड टू लैम्प्स ह्यूमर. लैम्प्स का जो ह्यूमर है उसमें पैथोस बड़ी नज़दीक रूप से और संपर्क रखता है. लैम्प वाज अनमेरिड एंड देयरफॉर द क्वेश्चन ऑफ हैविंग चिल्ड्रेन डज नॉट अराइज. तो ये अनमेरिड थे, बस इतना ही समझना है. पैथोस इज सम काइंड ऑफ कैथरिस एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द राइटर. जो पैथोस है वो क्या करता है, राइटर को थोड़ा हैप्पीनेस देता है राइटिंग करने के लिए. As the back of pathos is Lamb's own tragic life. जो पैथोस है ये लैम्प का जो एक ट्रैजिक लाइफ भी है. His essays are full of brief character sketches. उसके एसेज जो है बहुत ही छोटा है और कैरेक्टर स्केच भी उसके साथ मौजूद रहता है. लैम्प्स रिमार्केबल कैरेक्टराइजेशन मेक हिज कैरेक्टर मेमोरेबल. उनका कैरेक्टर को मेमोरेबल बनाया जाता है. सम ऑफ देम आर मास्टर पीसेस ऑफ ह्यूमर. कुछ में से उसका जो ह्यूमर से वो मास्टर पीसेस भी है. लैम्प हैज़ बीन ऑब्जर्वेशन एंड मास्टरली power of representing contemporary manners and moods. फिर उसके बाद देखते हैं लैम्प्स एसेस आर फुल ऑफ एनेकोटेट्स. लैम्प का जो ऐसे है ये पूर्ण रूप से एनेकोटेट है. ठीक है, ये पूर्ण रूप से एनेकोटेट है. और साथ ही साथ ये जो ऐसे साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि इसमें और भी कई सारी बातें हैं, जैसे अनकोटेड से तो यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं. लैम्प्स ऐसे आर फुल ऑफ एनेक्डोट्स.
In a modern gallantry also, he had conveyed his idea of regard and respect for ladies through the story of Susan Winsley and Joseph Paish. तो ये एक उदाहरण है। इस ऐसे में हम विशेष करके देखते हैं कि महिलाओं को कैसे सम्मानित किया जाएगा, खास करके दो व्यक्ति के बारे में, सुसन और जोसेफ पैस के बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं। दिस एनेक्डोट्स प्रोवाइड ए नैरेटिव अपील टू हिज एसे एंड बिकम ए पार्ट ऑफ ए पार्सल ऑफ हिज एसेस। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि उसके जो रुचिकर कार्य जो है ऐसे के ऊपर होता है। अबाउट द ऐसे के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। 2 लाइन छोड़ दिया, लेकिन विषय वस्तु में आपको समझा भी दिया। अकॉर्डिंग टू ह्यूज वॉकर, लैम हैज विजडम as one of his greatest qualities। तो ह्यूग वॉकर जो है वो लैम्स के विजडम के बारे में बताते हैं कि वो एक ग्रेटेस्ट क्वालिटीफुल है। ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वाइसेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम। एक बहुत ही और वाइसेस्ट पर्सन के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है उनके समय में, यानी एक विचक्षण ज्ञानी पुरुष के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है उनके समय में। हिज एसेस आर फुल ऑफ फिलोसॉफिकल, दर्शा, पिथी, प्रोवर्बियल, अफ्रोरिटिक एंड डिडैक्टिक लाइन which cannot be explained in details। तो उनके ऐसे जो है इस प्रकार की है जो मैं अभी पढ़ाया, तो इसीलिए उसको डिटेल एक्सप्लेन करना मुश्किल भी हो सकता है। बट देर इज़ डिफरेंस बिटवीन बैकन एंड लैम्प ऑन द इशू। लेकिन लैम्प और बैकन के बीच में एक डिफरेंस इशू है। बैकन प्रोवाइड्स वर्ल्डली विजडम। बैकन जो है ये सांसारिक के ज्ञान की बात करते हैं। विच में समटाइम बी इमोरल और इलीगल, जो कि कभी कभी इमोरल और इलीगल भी हो जाता है। लैम्प प्रोवाइड द विजडम विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जीनोस के द्वारा, यानी समय के आधार पर जो आवश्यक होता है उसी आवश्यकता को सामने रख करके वो अपना लेख को लिखते हैं। In the essay Modern Gallantry, Lamb has expressed his dissatisfaction over the behavior and attitude of men toward the woman of his age। तो इस ऐसे में वो खास करके महिलाओं को जिस प्रकार व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार को देख करके वो नाखुश रहते हैं। साफी मतलब क्या कह सकते हैं उसको, डिससेटिस्फेक्शन होकर के रहते हैं। ही हैज़ गिवन मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। तो बहुत से जो लेख है उसी को देख करके और कई सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। ओके, ये खुश नहीं है कि महिलाओं के जो सम्मान जिस प्रकार किया जाता है उससे वो खुश नहीं है। ही हैज़ गिवन मैनी एग्जाम्पल ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर बहुत से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं ऑन डिफरेंट ओकेशन एंड डिफरेंट कैपेसिटीज़। जो डिफरेंट ओकेशन भी हैं और डिफरेंट कैपेसिटीज़ भी हैं। Where men missed the mark of paying respect to their counterpart, फीमेल as फीमेल। एक महिला को जैसे कि वो फीमेल है तो उसी के आधार पर उसको रेस्पेक्ट देना जरूरी है। वेल्थ, ब्यूटी, एज, रैंक, रिलेशन
and circumstances are vital factors which decrease or increase amount of reverence toward the female member of the society। तो पूरे सोसाइटी में महिलाओं के प्रति जो सम्मान है कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है ना। लैम्प ऑब्जर्व द बैड हैबिट नॉट ओनली ऑफ मैन फ्लॉक बट ऑल्सो ऑफ लेडीज़। तो जो गलत आदत है, बैड हैबिट जिसे कहते हैं, ये केवल इंसान का नहीं है बल्कि औरत से भी उन्होंने उस चीज़ को लक्ष्य करके देख करके प्राप्त किया। बाय वे ऑफ एडवाइस ही हैज सजेस्टेड द वुमेन टू फर्स्ट लर्न टू पे रेस्पेक्ट देमसेल्व्स। महिलाओं को एंड देयर सेक्स, महिला को सबसे पहले ये वो उपदेश देते हैं कि सबसे पहले उनको अपना रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है एक फीमेल सेक्स के आधार पर। इफ़ दिस हैपन्स अदर्स विल ऑल्सो पे रेस्पेक्ट टू देम। अगर वे अपने आप को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरे भी उनको रेस्पेक्ट देना चालू कर देंगे। यानी वो अपना चरित्र को ऐसे बनाए रखे और उतने चतुराई से काम करे कि कभी कोई बदनाम ना हो और हर कोई उसको पसंद करे और हर कोई उससे पढ़ना भी चाहे। इफ़ दिस हैपेंस अदर्स विल ऑल्सो पे रेस्पेक्ट टू देम। देयर कैनॉट बी एनीथिंग मोर डायरेक्ट and emphatic than the concluding lines of the essay। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे कहते हैं। What a woman should demand of a man is authorship, but after it is first respect for her as she is a woman। महिला और पुरुष को तुलना की जाए तो महिला को रेस्पेक्ट देना जरूरी है क्योंकि वो महिला है। एंड नेक्स्ट टू दैट ही बी रेस्पेक्टेड बाय हिम अबव ऑल अदर वुमेन। लेट योर फर्स्ट लेसन टू बी रिवर्स हर सेक्स। दिस इज बेटर ट्रूथ फॉर बोथ पार्टीज। ये एक सत्य है जो दोनों पार्टी के लिए है। द मेल as well as द फीमेल, जो महिला के लिए और पुरुष के लिए। मोरेवर द एसेंस ऑफ द एसे हैज यूनिवर्सल अपील फॉर ऑल टाइम टू कम। लेकिन इसमें इतना और गूढ़ ज्ञान बात रही है तो हर सेंचुरी में ये चलेगा और इस समय भी ये राजस्थान बोर्ड में चलेगा। दिस इज एप्लीकेबल इन एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट वाज फ्रॉम रेशियल prejudice here lies the real estimate of Lamb's views about the respect to ladies as ladies। एक महिला को महिला की तरह रेस्पेक्ट करना, और इसी बात को ही ज़्यादातर चार्ल्स लैम्ब यहाँ पे क्या करते हैं और विशेष रूप से उसी बात को यहाँ पे बताते हैं। तो टेक्स्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्ते।